Yeah, good afternoon, everybody. Now, today we are going to do more of theory part. So you may don't have to write anything. You just listen carefully what I'm teaching today. Okay. You can copy down all these notes when I'll send you all on WhatsApp. Now, this is carb cation, carbonium ion, and carb anion. Now, this entire today's lecture mechanism, you have to give heading as mechanism, SN1, SN2 mechanism, and we'll do optical activities. So we'll do all these things today. First, we'll revise with carb cation, carb anion. This is already we have done in your 11th standard. Carb cation. Carb cation is a positively charged carbon ion. Carb anion is negatively charged carbon ion. Carbonium or carb cation is electron deficient, whereas carb anion is electron rich species. Carb cation has 6 electron in valence shell. Carb anion has 8 electron in valence shell. Carb cation is sp2 hybridized. Carb anion is sp3 hybridized. That is, hybridization of carbon is sp2. Your hybridization of carbon is sp3. It has triangular planar or trigonal planar geometry. It has pyramidal geometry. It can accept pair of electron. It can donate a pair of electron. Carb cation is Lewis acid or electrophile, and carb anion is Lewis base or nucleophile. Example is third butyl carb cation, 3 methyl group attached to this carbon, positively charged carbon. This methyl carb anion, negatively charged. I'll repeat, carb cation is positively charged, carb anion is negatively charged. Cation is electron deficient, anion is electron rich. Carb cation has 6 electron in the valence shell. It has 8 electron in valence shell. It is sp2 hybridized. It is sp3 hybridized. It has triangular planar geometry. It has pyramidal geometry. It can accept electron pair. It can donate an electron pair. Therefore, it is a nucleophile. It is an electrophile. Or you can call it as Lewis acid or Lewis base. Lewis acids are electron pair acceptor. Lewis base is an electron pair donor. Example, third butyl carb cation, methyl carb anion. Next, electrophilic reagent, nucleophilic reagent. These are electron loving species. These are nucleus loving species. Electrophiles are electron deficient. Nucleophiles are electron rich. Electrophile attack the site of high electron density. They attack low electron density. They are positively charged or a neutral molecule. They can be negatively charged or neutral molecules. The molecules have incomplete octet, or the molecules have lone pair of electron. Electrophiles are Lewis acid and nucleophiles are Lewis base. They accept an electron pair, they donate a electron pair. Now, any positively charged ion like hydrogen ion, nitronium ion, boron trifluoride, aluminum trichloride, as they are electron deficient, they act as electrophilic reagents. Negatively charged ions like hydroxyl ion, cyanide ion, halide ion, water, the molecules having lone pair of electron, water, ammonia, nitrogen has lone pair, etc. So all these molecules having lone pair can act as nucleophilic reagent. Today's lecture, you don't have to write anything, just listen and copy down the notes later on. So, yeah, I had a doubt in the previous slide. Previous slide? You don't have to copy, just listen. I'll repeat. Yeah, I had a doubt. Okay. Yeah, say carb cation, carb anion. So, दोनों के example में both the times it's carbon only, like हाँ, carbon or it's third butyl and they're also methyl. So what makes this one carb anion and what makes that one carb cation? You have heard about homolytic fission and heterolytic fission. होमोलिटिक फिजन है ना, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग होती है.
तो जब मीथेन में Symmetrical है, हाँ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा ना तो दे विल गिव यू फ्री रेडिकल्स। पर अगर मीथेन में ऐसा okay. होता है कि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इट रिटेन्स इलेक्ट्रॉन पेयर और हाइड्रोजन आयन फॉर्म हो जाता है, तो कार्ब एनायन क्रिएट होगा। पर अगर मिथाइल क्लोराइड होता है और अगर बॉन्ड टूटेगा तो क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, तो पॉजिटिवली चार्ज क्रिएट होगा। तो पॉजिटिव चार्ज कार्बन को क्या बुलाते हैं? कार्ब एनायन, सॉरी कार्ब कैटायन। Cation. हाँ कार्ब कैटायन पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज को कार्ब एनायन बुलाते हैं। अभी ये ना ये सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है, अलग अलग सॉल्वेंट की प्रेजेंस में हेट्रोलिटिक फिशन होता है, तो ज्यादा पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में हेट्रोलिटिक फिशन क्रिएट होगा। और अगर मिथाइल क्लोराइड है तो मिथाइल क्लोराइड इन एक्वस मीडियम विल स्प्लिट एज मिथाइल पॉजिटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव, ऐसे। Chlorine negative. हाँ Okay. और अगर कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा और उसमें हमने मीथेन को स्प्लिट किया तो हाइड्रोजन पॉजिटिव हो जाएगा और कार्बन नेगेटिव हो जाएगा, तो उसमें कार्बन आयन क्रिएट होगा। ठीक है ना? So depends तो on the solvent. डिपेंड्स अपॉन सॉल्वेंट एंड डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ ब्रेकिंग। तीन तरह की ब्रेकिंग, दो तरह की ब्रेकिंग होती है, होमोलिटिक और हिट्रोलिटिक। Homo and hetero. होमोलिटिक में तो फ्री रेडिकल ही क्रिएट होते हैं, पर हिट्रोलिटिक डिपेंड्स अपॉन सॉल्वेंट। अलग अलग सॉल्वेंट में हिट्रोलिटिक फिशन अलग अलग तरीके से स्प्लिटिंग। इज इट क्लियर? Yes. Thank you, समझा sir. ना? तो दो तरह के कार्बन हाँ. मिलते हैं हिट्रोलिटिक की वजह से, तो पॉजिटिव कार्बन भी मिल सकता है, नेगेटिव कार्बन भी मिल सकता है। तो पॉजिटिव Okay. कार्बन होगा तो कार्ब कैटायन और नेगेटिव कार्बन हुआ तो कार्ब एनायन। Carbon ion. हाँ और पॉजिटिव कार्बन में टर्शरी कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए मैंने ये वाला एग्जांपल दिया। और कार्ब एनायन में मिथाइल कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए छोटा वाला दिया। उसमें ये वाला ज्यादा एग्जांपल, मतलब स्टेबल ज्यादा है। ठीक है ना? तो इसलिए आई हैव गिवन दिस टू एग्जांपल्स। ओके ओके। Yes. देन ये इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक समझ आया ना? हाँ. न्यूक्लियोफाइल्स, हाँ न्यूक्लियोफाइल्स ऐसे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं और इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिएजेंट्स होते हैं। ठीक है? दिस ऑल वी हैव डन इन 11th, वी आर जस्ट रिवाइजिंग इट। 12th स्टैंडर्ड में ज्यादातर इनके रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, पर ये बेसिक मालूम होना चाहिए, इसलिए मैंने रिवाइज करवाया। ओके अभी हम लोग न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ही करने वाले हैं, तो न्यूक्लियोफाइल क्या है वो मालूम होना जरूरी है, इसलिए मैंने न्यूक्लियोफाइल समझाया। और इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन बनने वाला है, तो इसलिए मैंने वो भी समझाया। ओके नाउ विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। एक्सप्लेन SN2 मैकेनिज्म। अभी ये इतना फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का, हर साल कोई ना कोई फॉर्म में जरूर आता ही आता है। तुम 10 साल के पेपर्स देख लोगे पीछे, तो दिस क्वेश्चन SN2 या SN1 वो मैकेनिज्म बहुत फेवरेट है एग्जामिनर्स, so they ask you in any form. Okay, so this is very mark, very important. Two mechanisms we are going to do today, SN2 and SN1. अभी कभी कभी ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता है, देखो क्वेश्चन कैसे आता है। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड। सी द क्वेश्चन, एग्जाम में कितनी बार ऐसे पूछा गया है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड, या तो explain the mechanism in which there is 100% inversion of configuration। ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, डायरेक्ट नहीं आता है SN2। बच्चे बाहर आके बोलते हैं SN2 आया ही नहीं था सर, और मैं बताता हूँ देखो ये क्वेश्चन ये फॉर्म में आया था। तो ये क्वेश्चन मैं हर बार बोलता हूँ, फिर भी वो लोग याद नहीं रखते हैं। इट इज नॉट डायरेक्टली SN2 मैकेनिज्म, बट दे विल आस्क यू इनडायरेक्ट फॉर्म। दो फॉर्म मैंने बताए, या तो वो लोग पूछेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड, या तो वो लोग पूछेंगे give a mechanism in which there is 100% inversion of configuration। अभी मैकेनिज्म समझो फिर समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये SN2 का मतलब क्या होता है? S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, और 2 का मतलब होता है सेकेंड ऑर्डर या तो बायोमोलिकुलर। अभी व्हाट डू यू मीन बाय दिस सेकेंड ऑर्डर या बायोमोलिकुलर? आई विल एक्सप्लेन यू ऑल दैट। अभी देखो ये मिथाइल ब्रोमाइड KOH से रिएक्ट करता है, हम यहाँ पे ब्रोमीन को OH से रिप्लेस करते हैं। ब्रोमीन एक न्यूक्लियोफाइल है, OH भी एक न्यूक्लियोफाइल है, तो एक वीक न्यूक्लियोफाइल को हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस कर रहे हैं, और इसलिए ये मैकेनिज्म को बुलाते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। ओके आई विल रिपीट, इसको सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक क्यों बुलाते हैं? तो यहाँ पे लिखना है
S stands for substitution, N stands for nucleophilic, and 2 stands for bimolecular. फिर बोलना है bromine, a weaker nucleophile, is substituted by OH, a stronger nucleophile. Therefore, it is called nucleophilic substitution reaction. देखो ऐसे, अब ब्रोमीन और OH, ब्रोमीन को रिप्लेस करके हमने OH लगा दिया, या आयोनिक फॉर्म में ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा. ओके, अभी इसको 2, ये सेकेंड ऑर्डर या तो बायोमोलिकुलर क्यों बुलाते हैं? जब हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं, काइनेमेटिक एक्सप्रेशन, ये रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन. अभी स्पीड ऑफ रिएक्शन मिथाइल ब्रोमाइड पे भी डिपेंड करता है और KOH पे भी डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट और इसको बोलते हैं रिएजेंट. सो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट बोथ, and therefore it is called bimolecular reaction. I'll repeat यहाँ तक. SN2 का मतलब होता है S is substitution, N is nucleophilic, 2 is bimolecular और second order. इसको substitution nucleophilic इसलिए बुलाते हैं because of bromine, a weaker nucleophile, is substituted by OH, a stronger nucleophile. It is called second order or bimolecular because a rate of reaction depends on methyl bromide, that is substrate, and OH, that is reagent. So it depends upon both. Therefore, it is called 2 bimolecular. Now, अभी मैकेनिज्म पार्ट में हम लोग देखो ऐसे समझते हैं, यहाँ पे बोलना है मैकेनिज्म टेक्स प्लेस इन 1 step but 3 stages. क्या बोलोगे? मैकेनिज्म टेक्स प्लेस इन 1 step but 3 stages. Stage 1, backside attack of OH. Stage 1 is backside attack of OH. अभी बोलना है OH cannot attack methyl bromide from front side because of repulsion of bromide ion. OH भी नेगेटिव है, ब्रोमीन भी नेगेटिव है, तो OH आगे से अटैक नहीं कर सकता, पर OH इजीली पीछे से अटैक कर सकता है. तो स्टेज 1 पहले बोलना है reaction is 1 step but takes place in 3 stages. Stage 1, backside attack of nucleophile OH. उसमें लिखना है OH cannot attack from front side because of repulsion of bromide ion, but OH can easily attack from backside of carbon bromine axis. तो ये हुआ stage 1. Stage 2 लिखना है फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेज. अब ये ट्रांजिशन स्टेट जो होता है, इट इज एन अनस्टेबल, हाई एनर्जी, एक्साइटेड स्टेट एंड कैन नॉट बी आइसोलेटेड. मतलब हम इसको अलग नहीं कर सकते, ये ड्यूरिंग द रिएक्शन ही फॉर्म होता है. यहाँ पे लिखना है ट्रांजिशन स्टेट में, इन दिस स्टेज कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड, इज अबाउट टू ब्रेक and carbon OH bond is about to form. Here carbon is penta bonded, 5 bonds होते हैं कार्बन के, ये बहुत ही अनस्टेबल है. OH, carbon and bromine lie in one axis, whereas all 3 hydrogen are perpendicular to this axis. Okay, तो बोलना है it is a 1 step but takes place in 3 stages. पहला स्टेज है backside attack of nucleophile OH. इसमें लिखना है OH cannot attack from front because of repulsion of bromide ion, but OH can easily attack from backside of carbon bromine axis. Stage 2 लिखना है transition state. इसमें लिखना है it is a high energy, unstable and excited state, cannot be isolated. Your carbon atom is pentabonded or 5 bonded. OH, carbon and bromine lie in one axis, whereas all 3 hydrogen atoms are perpendicular to this axis. Carbon bromine bond is about to break and carbon OH bond is about to form. Last stage लिखना है 100% inversion of configuration. इस स्टेज में लिखना है carbon bromine bond is completely broken and carbon OH bond is completely formed. All 3 hydrogen move on the opposite side
of carbon OH axis. देखो पहले यहाँ पे देखो 3 हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे है और ब्रोमीन राइट साइड पे, पर यहाँ पे पूरा उल्टा होने के बाद OH लेफ्ट साइड पे आ गया और तीनों हाइड्रोजन राइट साइड पे ऐसे घूम गए। क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर घूम रहा है इसलिए इसको 100% इन्वर्जन बुलाते हैं। तो ये पूरा मैकेनिज्म 3 से 4 मार्क के लिए आता है एंड यू हैव टू राइट कंटिन्यूअसली दिस होल थिंग। ओके, RDS का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या स्लो स्टेप, और ये ऐसे एरो पे लिखना है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और स्लो स्टेप। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट, मैंने बोला ना डिपेंड करता है ब्रेकिंग, तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड या तो क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। ओके, सो इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। Okay, I'll repeat the entire SN1 mechanism. So it will be for 3 to 4 marks. Okay, SN1 का मतलब होता है substitution, S for substitution, N for nucleophilic, and 2 for second order. फिर यहाँ पे लिखना है substitution nucleophilic क्यों बुलाते हैं? A weaker nucleophile bromine is replaced by stronger nucleophile OH. Therefore, it is called substitution nucleophilic. फिर बोलना है rate of reaction depends on substrate, that is methyl bromide, as well as KOH, that is OH ions. As it depends on both, therefore it is called second order or bimolecular. फिर इसके बाद लिखना है the reaction takes place in one step but 3 stages. फिर stage 1 में बोलना है backside attack of nucleophile OH. अब ये stage में बोलना है OH cannot attack from front side of carbon bromine axis because of repulsion of bromide ion. Therefore, OH can easily attack from back side of carbon bromine axis. It is a slow step and a rate determining step. ऐसा लिख देना है। फिर second stage में लिखना है formation of transition state. इसमें लिखना है it is an unstable, high energy and excited state, cannot be isolated. Here, carbon atom is pentavalent. Carbon bromine bond is about to break and carbon OH bond is about to form. Here, OH, carbon and bromine lie in one axis, whereas all 3 hydrogen are perpendicular to this axis. फिर third stage लिखना है 100% inversion of configuration. यहाँ पे बोलना है carbon bromine bond is completely broken and carbon OH bond is completely formed. All 3 hydrogen move on the opposite side of carbon OH axis. Therefore, there is 100% inversion of configuration. मतलब जो configuration पहले था कार्बन और ब्रोमीन का, उसका पूरा उल्टा हो गया है configuration. ब्रोमीन राइट में था, OH लेफ्ट में आ गया, तो पूरा स्ट्रक्चर घूम गया है। क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर घूमा है इसलिए इसको 100% इन्वर्जन मतलब उल्टा 100% inversion of configuration बुलाते हैं। I hope everybody understood SN1 का पूरा mechanism. Anybody have doubt? You all can ask. Any doubt? Okay. I'll go for SN2 mechanism now. Like SN1, SN2 is also very, very important. SN2, SN1 is also very important. SN1 में we are doing alkaline hydrolysis of third butyl bromide. अभी third butyl bromide का hydrolysis करते हैं। फिर से S का मतलब क्या होगा? Substitution. N का मतलब क्या होगा? Nucleophilic. और यहाँ पे 1 depends on rate of reaction depends on only 1, that is unimolecular or first order reaction. अभी देखो reaction कैसे हो रहा है। यहाँ पे bromine is replaced by OH in presence of polar solvent. तो third butyl alcohol और bromide ion बनता है। अभी rate of reaction, यहाँ पे rate of reaction खाली third butyl bromide पे ही डिपेंड करता है, KOH पे नहीं डिपेंड करता है, और इसीलिए इसको फर्स्ट ऑर्डर बुलाते हैं।
तो पहले हम लोग लिखना है SN1 का मतलब क्या होता है। तो पहले बोलेंगे S मीन्स सब्स्टिट्यूशन, N मीन्स न्यूक्लियोफिलिक। फिर बोलना है अ वीकर न्यूक्लियोफाइल ब्रोमीन is replaced by stronger nucleophile OH. Therefore, it is called substitution nucleophilic reaction. It is called first order या unimolecular because the rate of reaction depends only on third butyl bromide. It does not depend upon KOH या तो फिर OH ions, and therefore it is called first order or unimolecular reaction. अभी देखो यहाँ पे बोलना है reaction takes place in 2 steps. First step, फॉर्मेशन ऑफ थर्ड ब्यूटाइल कार्ब कैटायन। अभी ये स्टेप में लिखना है तो OH कैनॉट अटैक फ्रॉम फ्रंट साइड ऑफ कार्बन ब्रोमीन एक्सिस बिकॉज ऑफ रिपल्शन ऑफ ब्रोमाइड आयन। OH कैनॉट अटैक फ्रॉम बैक साइड। यहाँ पे 3 बड़े बड़े मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे जगह ही नहीं है अटैक करने को जाने के लिए, कार्बन के साथ अटैक करने की जगह नहीं है, इसलिए पहले कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड टूटेगा तो ही रिएक्शन आगे बढ़ेगा। और इसीलिए रिएक्शन का स्पीड सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंड करता है, OH हो या ना हो कोई फायदा नहीं है। जब तक कार्ब कैटायन नहीं बनेगा रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। और इसीलिए यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ थर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड पे ही डिपेंड कर रहा है। तो ये स्टेज में लिखना है OH कैनॉट अटैक फ्रॉम फ्रंट साइड बिकॉज ऑफ रिपल्शन ऑफ ब्रोमाइड आयन। OH cannot attack from back side because of bulky methyl group. ये रीजन को बोलते हैं steric hindrance. What we call steric hindrance. Steric hindrance का मतलब है बल्कि ग्रुप बड़े बड़े ग्रुप है और वहां पे जगह नहीं है। ये मिथाइल जो ग्रुप है वो भी 3 डायमेंशनली इमेजिन करो, ये तीनों हाइड्रोजन टेट्राहीड्रली अरेंज किए हुए हैं, यहाँ हर जगह पे। तो यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है ये कार्बन तक पहुंचने के लिए, तो OH कैनॉट कनेक्ट हियर डायरेक्टली और इसलिए पहले कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड टूटेगा। सो पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ थर्ड ब्यूटाइल कार्ब कैटायन। फिर बोलना इट इज अ स्लो स्टेप, इट इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट 1। ट्रांजिशन स्टेट 1 में कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड इज अबाउट टू ब्रेक। फाइनली कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड इज ब्रोकन and we get tertiary carb cation, which is sp2 hybridized. It has planar geometry, it has 6 electrons in its valence shell and it is positively charged carbon ion. ये पूरा सब इसके अंदर लिखना है एक ही स्टेप के अंदर। फिर से पूरा स्टेप रिपीट करता हूं। स्टेप 1, फॉर्मेशन ऑफ थर्ड ब्यूटाइल कार्ब कैटायन और कार्बोनियम आयन। बोलना है here OH cannot attack from front side because of repulsion of bromide ion. OH cannot attack from back side because of steric hindrance, and therefore first a tertiary carb cation is formed. It is a slow step, it is a rate determining step. It leads to the formation of transition state 1 where carbon bromine bond is about to break. Finally the carbon bromine bond is broken and we get tertiary carb cation, which is sp2 hybridized. It has planar geometry, it has 6 electron in its valence shell. ये पूरा स्टेप 1 में लिखना है। स्टेप 2 में लिखना है फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। ये स्टेप में लिखना है OH can attack from front side as well as OH can now attack from back side. अभी टर्शरी कार्ब कैटायन को OH आगे से भी अटैक कर सकता है, पीछे से भी अटैक कर सकता है। This leads to the formation of transition state 2. It is a fast step. यहाँ पे carbon OH bond is about to form. If OH attack from front side, then there is retention of configuration. मतलब कॉन्फ़िगरेशन जैसा था वैसा मिलेगा। और OH अगर पीछे से अटैक करेगा तो 50% इन्वर्जन मिलेगा। ये केस में 50% रिटेंशन है और 50% इन्वर्जन है। क्योंकि दोनों 50-50 है, ऐसे मिक्सचर को रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं।
और इसीलिए बोलते हैं इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, 50% रिटेंशन एंड 50% इन्वर्जन। फिर से स्टेप 2 रिपीट करता हूं, ये स्टेप में बोलना है इन दिस स्टेप OH कैन अटैक फ्रॉम फ्रंट साइड as well as OH can attack from back side. This leads to the formation of transition stage 2. In transition stage 2, carbon OH bond is about to form. It is unstable and excited state and cannot be isolated. फिर बोलना है if OH attack from front side, then there is retention of configuration. If OH attack from back side, there is inversion of configuration. But in this case, there is 50% retention and 50% inversion leading to racemic mixture. Okay, तो ऐसे पूरा SN1 मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना है। ये सारे नोट्स मैं तुम लोग को व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, तो तुम उसको रेफर कर सकते हो। अगर OH आगे से मतलब जो देखो टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड था ना, उसमें ब्रोमीन राइट साइड पे था, तो OH राइट पे आ गया तो रिटेंशन हुआ, कॉन्फ़िगरेशन जैसा कॉन्फ़िगरेशन था वैसा वापस आ गया। अगर OH पीछे उल्टा ब्रोमीन राइट पे था, अभी OH लेफ्ट पे आ गया, तो हमें यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है ना टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड, जब अल्कोहल में कन्वर्ट होगा तो 50% OH ब्रोमीन की जगह पे ही रहेगा और 50% उसके ऑपोजिट साइड पे लगेगा, तो दोनों तरह के अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन मिलते हैं। अभी ये जो केमिस्ट्री है ना, याद है मैंने तुमको 11th में एक कॉन्फर्मेशन भी सिखाया था, कॉन्फर्मर्स कहाँ पोजीशन स्पेस में कहाँ रखे गए हैं एटम्स, ये पार्ट, ये आइसोमर्स को हम स्टीरियो आइसोमर्स बुलाते हैं। आज हम लोग एक ऑप्टिकल आइसोमर भी करने वाले हैं, उसमें हम लोग ये स्टीरियो आइसोमर्स का पार्ट भी करेंगे, तो उसमें तुमको समझ आएगा कि OH मिथाइल इनकी जो पोजीशंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट और मायने रखती है। इनमें ये दोनों कंपाउंड जो मैंने लिखा है, इनमें केमिकल प्रॉपर्टी में कोई फर्क नहीं आएगा, पर इनकी एक प्रॉपर्टी होती है जो ऑप्टिकल एक्टिविटी जो हम अभी लर्न करेंगे, लाइट को घुमाने की एक प्रॉपर्टी होती है, उनमें उनकी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पूरी केमिस्ट्री को हम स्टीरियो केमिस्ट्री बुलाते हैं। So it is a part of stereochemistry and which is very very important. And when you take chemistry in higher class, stereochemistry एक पूरा सब्जेक्ट बन जाता है, तो तुम उसकी वास्टनेस समझ सकते हो, इंपॉर्टेंस समझ सकते हो। Okay, so these are the type of isomers which we get by their different position in the space, position of atom in their space. It is called stereochemistry. So it is a part of stereochemistry. I'll repeat entire SN1 mechanism again. SN1 mechanism में पहले बोलना है S stands for substitution, N stands for nucleophilic, और 1 का मतलब होता है यूनिमोलिक्यूलर या तो फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ पे बोलना है a weaker nucleophile bromine is substituted by stronger nucleophile OH and therefore this reaction is called substitution nucleophilic. फिर बोलना है rate of reaction depends only on substrate, that is third butyl bromide. It does not depend upon reagent OH and therefore it is a first order reaction या तो unimolecular reaction. फिर मैकेनिज्म में बोलना है it is a two-step reaction. First step बोलना है formation of third butyl carb cation या तो कार्बोनियम आयन। अभी ये स्टेप में बोलना है third butyl bromide, OH cannot attack from front side because of repulsion of bromide ion. OH cannot attack from back side because of steric hindrance. Steric hindrance का मतलब होता है बल्कि मिथाइल ग्रुप वहां होने की वजह से OH अटैक नहीं कर पा रहा है, तो वो रीजन को बोलते हैं खाली स्टेरिक हिंड्रेंस। ओके, तो तुमको बोलना है OH cannot attack from front side because repulsion of bromide ion. OH cannot attack from back side because of steric hindrance. Okay, फिर बोलना है it is a slow step, it is a rate determining step. It leads to the formation of transition state 1.
transition state 1 is high energy, unstable and excited state and cannot be isolated. Your carbon bromine bond is about to break. फिर बोलना है carbon bromine bond is completely broken, forming carb cation, positively charged carbon ion. It is sp2 hybridized. It has planar geometry. It has 6 electron in its valence shell. ये पूरा सब इसी में लिख देना है स्टेप 1 में. फिर स्टेप 2 में लिखना है फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर. अभी ये स्टेप में लिखना है OH can attack from front side as well as OH can attack from back side. It leads to the formation of transition state 2. Transition state 2 is again unstable and excited state, cannot be isolated. Your carbon OH bond is about to form. It is a fast step. If OH attack from front side, then there is retention of configuration. If OH attack from back side, then there is inversion of configuration. In this stage, there is 50% retention and 50% inversion, forming racemic mixture. अभी तुमको ये क्वेश्चन दो तरीके से आता है. या तो डायरेक्ट पूछेंगे एक्सप्लेन SN1 मैकेनिज्म विच इज वेरी रेयर, फिर पूछेंगे एक्सप्लेन अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड. तो टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड के लिए ये लिखना है. या तो पूछेंगे एक्सप्लेन द मैकेनिज्म in which there is 50% inversion and 50% retention. तो ये वाला mechanism लिखना है. I hope both the mechanism are clear and no difficulty. I'll go to the next part. देखो अभी ये वाला याद रखना है. नीट जेई में या तो MCQ में ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मीथाइल होता है ना तो क्राउडिंग कम है और न्यूक्लियोफाइल्स, ये फर्स्ट न्यूक्लियोफाइल है, दूसरा वाला जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो पीछे से आसानी से अटैक कर लेगा. अगर ये इथाइल है तो भी थोड़ा हो जाएगा, पर ये सेकेंडरी है तो थोड़ा सेकेंडरी. ये प्रोपाइल है, सेक प्रोपाइल है, सेक प्रोपाइल में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. और ये टर्ड ब्यूटाइल है, ये दिख रहा है टर्ड ब्यूटाइल, तो इसमें और भी डिफिकल्ट हो जाएगा. तो SN1 की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है? तो टर्शरी SN1 ज्यादा दिखाएगा. पर SN2 में कौन इजीली SN2 मैकेनिज्म दिखा सकता है? तो मीथाइल. मीथाइल में साइमल्टेनियस ब्रेकिंग और अटैकिंग दोनों आसानी से हो सकती है. तो मीथाइल SN1 दिखाता है और टर्ड ब्यूटाइल होगा तो SN2 दिखाएगा. पर अगर सेक प्रोपाइल आया तो 50-50 होगा, मतलब SN1 भी हो सकता है, कभी SN2 भी हो सकता है. डिपेंड कर रहा है जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस, जितनी ओवर क्राउडिंग होगी तो वो SN1 दिखाएगा, कम ओवर क्राउडिंग होगी तो SN2 दिखाएगा. अभी देखो इन जनरल ऐसे याद रखना है. ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पूछा तो SN1 में टर्शरी टर्ड ब्यूटाइल SN2 जल्दी दिखाएगा कंपेयर टू सेकेंडरी, कंपेयर टू प्राइमरी, कंपेयर टू मीथाइल. और SN2 मैकेनिज्म कौन दिखाएगा? तो मीथाइल जल्दी दिखाएगा, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी. तो ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है. तुमको 4 अलग अलग एग्जांपल दिए होंगे और बोलना है इसको अरेंज करो. तो जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा वो SN1 में सबसे ज्यादा होगा, फिर कम, फिर कम, फिर कम. जितना स्टेरिक हिंड्रेंस कम होते जाएगा वो ऑर्डर में अरेंज करना है SN1 के लिए. ओके. और SN2 में मीथाइल, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी, ऐसे जाना है. सो दिस ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQ पार्ट. ओके. तो नीट जेईई में ज्यादातर मैकेनिज्म में तुमको इंटरमीडिएट क्या है वो सब पूछ सकते हैं, और ये ऑर्डर वाला पार्ट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो अलग अलग एग्जांपल्स देंगे और तुमको अरेंज करना पड़ेगा कौन SN1 जल्दी दिखाएगा, कौन SN2 जल्दी दिखाएगा. तो अभी तुमको अगर कॉन्सेप्ट समझ आया तो दिस
this will be very easy for you all to identify कि कौन SN1 जल्दी दिखा सकता है, कौन SN2 जल्दी दिखा सकता है. Okay. With this, we'll take a break. Anybody have any doubt can ask me. Or we'll take a break and then continue again.